Hello students, now we studied about the project scheduling and resource leveling chapter in construction management subject. First one is introduction. What do you understand by project scheduling and resource leveling? Resources is a physical variable such as man, material, machine, space, money, time, etc. that is required for the completing of various activities or job of a project. कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें ये सब चीजें चाहिए, बराबर। जैसे कि मैन है, मटेरियल, मशीन, स्पेस, मनी, टाइम, वो सब चाहिए। जो भी हमने सीपीएम और पॉट में पढ़ा तो उसमें हमने रिसोर्सेज की लिमिटेशन नहीं दिखाई थी। दैट मीन्स द रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑल द टाइम और अनलिमिटेड। The network analysis for CFIM and POT assumes that resources available are liberal or unlimited, but all the necessary resources are not available in unlimited quantities. Availability of the some resources may be restricted. For example, availability of a manpower, supervising staff, technical specialists, personal, skilled and unskilled labor, etc. and the materials, etc. are may be restricted. Availability of the funds, credits, then capital investment, heavy equipment may also be restricted. In certain cases, there may be space limitations. Supervisory, technical, skill, manpower, space and equipment are usually the most important resources that need to be allocated carefully. For that, the various activities of the project are to be scheduled in such a way that the demand of the various resources are more or less uniform all along the project duration. Large fluctuation in their demand may cause problem in the execution of the project. Object of the resource planning. At the time of preparing the network of any project, usually it is assumed that all the resources needed for its execution are available in plenty and no constriction of the resource constraint is taken into account. But in actual case, there are many restrictions or limited resources. But at the same time of the execution of the project, some of the resources fall short of the requirement. In such situations, the duration of the project may increase the cost of the project. The planning of the resources should be done in such a manner that no increase or decrease in resources demand may occur. As the engagement of the skilled labor all of a sudden is difficult, similarly the layoff of the labor suddenly is more difficult than their employment. Thus, for a good resource plan, it is essential that project may be completed during the stipulated time. That means कोई बार क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में हमने डिवाइड किया होता है, और जहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर मैनेजमेंट के अभाव से क्या होता है, जहाँ पे रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ है तो एक जगह पे ज़्यादा हो है, दूसरी जगह पे क्या होता है, ज़रूर होती है पर कम होता है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये जो भी तो ये प्रॉपर टाइम पे काम और जो भी प्रोजेक्ट होता है वो टाइम टू टाइम फिनिश होता है with limited resources. To achieve this objective, sometimes is become essential to make the chances in the earliest start time of some critical activities or execution of some activities may be postponed for the same time being. While taking decision for the postponing the
Execution of any activity of the effective changes in the earliest time of the critical activities following point should be kept in mind. That means आपको क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज जो भी जहाँ पे भी आपको प्लान करके दिया है, बराबर, तो जो भी फ्लक्चुएशन आता है कि यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, दूसरी जगह पे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है पर कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्टिविटीज़ दी है, बराबर, वो उसमें जो भी एक्टिविटीज अर्लियर स्टार्ट टाइम है, जो भी दिया है, जो भी एक्टिविटीज दी है, वो उसमें वो थोड़ा लेट, जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है वो थोड़ा लेट करना पड़ेगा, जिससे प्रॉपर मैनेजमेंट हो, टाइम टू टाइम और कंप्लीशन ऑफ वर्क हो। इसलिए while taking the decision for postponing the execution of any activity or effecting the changes in the earliest time of the critical activities following points should be kept in mind. क्या ध्यान रखना है, such activities should be started first whose completion duration is minimum. कौन सी एक्टिविटी फर्स्ट स्टार्ट करना है जिसका कंप्लीशन ड्यूरेशन कम है. द एक्टिविटी हैविंग मैक्सिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन शुड बी पोस्टपोन. मैक्सिमम एक्टिविटी ड्यूरेशन जिसका टाइम है वो हमें क्या करना है, थोड़ा लेट स्टार्ट करना है. द एक्टिविटी हैविंग मैक्सिमम फ्लोट टाइम शुड बी चूजन फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द फर्स्ट. पोस्टपोन किसको करना है, तो जिसका फ्लोट टाइम ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसको उसकी एक्टिविटी का जो भी टाइम है वो पोस्टपोन करना है. मेथड्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. Depending upon the situation and the resource allocation can be done by the following two methods: resource smoothing and resource leveling. The resource smoothing is resorted or done when there is a restriction on the duration of the project completion time. Project completion time है, उस पर restriction है, तो क्या करना पड़ता है, resource smoothing करना पड़ता है. Resource smoothing is applied in such a way that the total project duration remains the same. That is, there is no change in the total duration of the project. First, the period of the minimum demand for the resources are determined or located and the activities are shifted according to the availability of the float and requirement of the resources. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कैसे हम रिसोर्स स्मूथनिंग कर सकते हैं. Thus, the intelligent use of the floats can smoothen the demand to the maximum possible extent, and this type of the resource allocation is known as the resource smoothing. Steps in the resource smoothing. क्या steps है? The first of the resources required for the execution of the different activities is prepared and the important activities are identified. The resource profiles are prepared by resource aggregation and cumulative resources requirement for each unit are plotted in the form of histogram. The time periods of the peak and low demands are identified and the peaks are lowered. The through are filled up. If there is no restraint on the availability of the resources, the demand of the resources should be made as uniform as possible. This can be done by changing the time of start and finish of the non-critical activity in the first instance. These activities have some float, hence the available float can be used for the doing adjustment in the start and finish of the concerned activities. Thus, the peak demand may be lowered by staggering the resource requirement without delaying a project direction. इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बराबर. एग्जाम्पल पे से ज़्यादा समझ में आएगा. The expected time and the number of the labor to finish each activity of a project are shown in the following table. Smoothen the requirement of the resources so that the project may be completed in a scheduled duration. सीरियल नंबर दिया है, एक्टिविटी दिया है, एक्सपेक्टेड टाइम TIG दिया है, नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड दिया है,
फर्स्ट स्टेप तो क्या आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नेटवर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ द नेटवर्क ऑफ प्रोजेक्ट विद द गिवन डेटा, लेट इट बी एज इज शोन इन द फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी 1 2 है, उसका ड्यूरेशन कितना है 3, दैट इज एक्टिविटी ए। नंबर ऑफ लेबर कितना है 4 है। तो यहाँ पे नीचे हमने क्या लिखा, ड्यूरेशन लिखा, 1 2 3 एक्टिविटी लिखा, देन कितने नंबर ऑफ लेबर चाहिए 4, तो वो लिखा और एक्टिविटी ए लिखा। देन अगेन 1 2 3 दैट इज बी, ड्यूरेशन कितना है 2 है और लेबर कितना चाहिए 5 चाहिए, तो लिख दिया। ऐसे पूरा नेटवर्क बनाने का। देन आफ्टर second point is TE or TI. TL. Second step is from the diagram determine the earliest expected time TE and latest finish time TL. From the values of TEI and TL determine the total float for the each activity. Total float is equal to latest finish time minus earliest finished time. Then next float, from the float determine the critical path and project duration of the critical path. Show the earliest start time and each activity on a bar chart and determine the value of the total resource required each day. And the values of T and TL determined are shown on the diagram neatly near the each node as shown on the above diagram. First of all, second step क्या है, to find out TL and TE. TE and TL. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टाइम क्या है 0 है, तो हमें TE ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, TE1 प्लस जो भी ड्यूरेशन दिया है TIJ वो करना पड़ेगा। तो TE कितना मिलेगा हमें 3 मिलेगा, TE इज 3 मिलेगा। The next one is 1 3 है, T13, तो T3 मुझे करना है, T3 करना है, तो क्या करना पड़ेगा B5। नंबर ऑफ लेबर्स है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ये क्या है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, टाइम है, दैट इज 2। तो T3 फाइंड आउट करना है, तो TE1 प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन TIJ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा TE1 प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। Then next, for all the activities we find out TE from 1 to 7. Then TE7 फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इवेंट 7 पे कौन कौन सी इवेंट में से आ रहा है, इवेंट नंबर 2 5 एंड 6 पे से क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। इवेंट नंबर 7 कौन कौन सी एक्टिविटी पे से मिल रहा है DHI। तो TE7 का वैल्यू कितना मिलेगा 3 वैल्यू मिलेगा, जिसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो आपको क्या मिलेगा TE7। तो फॉर इवेंट नंबर 2 दैट मीन्स एक्टिविटी डी से मुझे फाइंड आउट करना है, तो TE7 इज इक्वल टू TE2 प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है 6 है, TE2 कितना है 3 प्लस 6, यहाँ पे मैंने TE4 लिख दिया है भूल से, यहाँ पे क्या है TE3 है। Then again TE7 from activity from event number 5 फाइंड आउट करना है, तो TE5 प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दैट मीन्स 8 प्लस 4 कितना आएगा 12 आएगा। अगेन फ्रॉम इवेंट नंबर 6 से फाइंड आउट करना है, तो TE6 प्लस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन TIJ, तो क्या मिलेगा 6 प्लस 2 दैट मीन्स 8। तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा रहा, तो ये 12 है,
यहाँ पे कितना मिल रहा है 3 + 6 9 मिल रहा है। यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 + 2 8 मिल रहा है। दैट मीन्स मैक्सिमम इज 12। तो तीनों में से जो भी मैक्सिमम आता है वो TE7 मिलेगा। अभी हमारे पास TL अवेलेबल नहीं है, तो जो भी TE मिला तो एज्यूम दिस TL इज इक्वल टू ऑल्सो 12। अभी क्या करना पड़ता है, करना पड़ेगा, उल्टा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो 7 में से क्या मिलेगा 2, 7 में से 7 इवेंट में क्या मिलेगा 5 एंड 7 इवेंट में से क्या मिलेगा TL 6। कैसे मिलेगा, तो आपके पास TL 12 है, तो उसमें से क्या फॉर इवेंट नंबर 2 है 2, दैट मीन्स TL2 फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा TL7 माइनस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, एक्टिविटी D का 6 है, तो 12 - 6 करेंगे तो क्या मिलेगा TL2 6 मिलेगा। अगेन वापिस मुझे TL5 करना है, तो कैसे करना पड़ेगा, तो TL7 कितना है 12 है, तो उसमें से क्या डिडक्ट करना पड़ेगा फॉर इवेंट नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर H के लिए हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है 4 है, 4 डिडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा TL8। अगेन यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी है, इवेंट कौन सी है 6 और एक्टिविटी कौन सी है I। तो यहाँ पे अगेन TL6 फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास TL7 है माइनस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है 2 है, तो डिडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इवेंट नंबर 4 है, तो किस में से आ रहा है 5 और 6 में से आ रहा है, तो 5 और 6 में से आ रहा है, तो TL4 दो इवेंट्स में से आ रहा है 5 और 6, तो दोनों का यूज करके वैल्यू का हम क्या फाइंड आउट करेंगे TL4 फॉर इवेंट नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर F। TL4 इज इक्वल टू TL5 माइनस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 3, दैट मीन्स 8 - 3 इज इक्वल टू 5। अगेन फॉर द इवेंट नंबर 6 एंड एक्टिविटी नंबर G, हाँ यहाँ पे क्या है TL10 है, तो TL10 में से क्या डिडक्ट करना है 1, तो आपको क्या मिलेगा 9। तो ये दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो लेना है, दैट इज TL4 इज इक्वल टू 5। सेम वे ऑल द वैल्यूज ऑफ TL we are find out। Okay, then next draw the table activity duration, earliest start time, earliest finish time, latest start time और latest finish time। तो एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमें दिया है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड आउट करना है, तो 1 1 to 2 1 to 3 और 1 to 4। उसमें जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 1 1 1 एक्टिविटी का TE1 कितना है 0 0 0 वो लिख दो। देन 2 to 7 है, 3 to 5 है, 4 to 5 है, 4 to 6 है और 5 to 7 है। तो 2 to 7 एक्टिविटी जो भी है उसमें आपको नेटवर्क लिखना पड़ेगा। 2 to 7 है तो उसमें कौन सा है वैल्यू TE4 है, तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा आपको 2 to 7 है, ड्यूरेशन कितना है 6, तो 2 to 7 है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना मिलेगा 3। यहाँ पे क्या है TE3 है, यहाँ पे मैंने भूल से लिख दिया है 4, यहाँ पे क्या है 3 है। उसी तरह 3 to 5 है तो T क्या मिलेगा 2, 4 to 5 है तो T क्या मिलेगा 5। इस तरह से सभी वैल्यूज आप लिख दो। देन अर्लीस्ट फिनिश टाइम EFT, तो 1 to 2 है, तो अभी 2 2 3 4 पे जो भी टाइम है वो देखने का, तो 2 वैल्यू है उस पे टाइम कितना है, तो TE इज इक्वल टू 1 to 2 है। तो 2 का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। ओके, उसी तरह 1 to 3, तो 3 पे TE3 कितना है वो देख लो, TE3 का वैल्यू कितना है 2 है, वो सभी वैल्यूज यहाँ पे रख दो। देन हमें LST फाइंड आउट करना है, तो क्या है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वो फाइंड आउट करना है, तो LFT
ये फॉर्मूला है LFT माइनस TIJ। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, LFT फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो LFT यानी फॉर एग्जांपल 6 to 7 है, तो 7 पे जो भी TL की वैल्यू है वो लिख दो। अगेन इस पे 7 पे जो भी एक्टिविटी TL की वैल्यू है वो लिख दो। अगेन 6 पे जो भी TL की वैल्यू है वो लिख दो। 5 पे TL की वैल्यू लिख दो। ये सब वैल्यू लेके किसमें से डिडक्ट करो, ड्यूरेशन में ड्यूरेशन में से डिडक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, LST मिलेगा। देन फ्लोट इज इक्वल टू LFT माइनस EFT। That means 6 minus 3 is equal to 3, 2 minus 4 minus 2 is equal to 2, 5 minus 5 is equal to 0, 12 minus 9 is equal to 3, 8 minus 6 is equal to 2, 8 minus 8 is equal to 0, 9 minus 6 is equal to 3, 12 minus 12 is equal to 0 and 12 minus 8 is equal to 4. यहाँ पे जो एक्टिविटी 1 to 4 है, देन 4 to 5 है और 5 to 7 है, उस पे क्या है, float 0, that means this one is called the critical activity। critical path कौन सा है, 1 4 5 7 है। the duration of the project along the critical path is equal to 12 days। the chart of the activities and resource requirement is prepared and resource demand determined as follows। आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल 2 में ड्यूरेशन और यहाँ पे एक्टिविटी दिया है। ओके, तो जो भी हमने पहले टेबल बनाया था उस तरीके से आप लिख दो। देन कितने लेबर्स चाहिए, ड्यूरेशन आपको दिया है ना, ड्यूरेशन इज 3, ड्यूरेशन इज 3 और नंबर ऑफ लेबर इज 4। तो ड्यूरेशन 3, 1 2 3 4 4 4, 3 ड्यूरेशन के लिए हमें कितने व्यक्ति चाहिए, 4 4 4। ओके, देन उसी तरह 1 2 3 के लिए कितने चाहिए लेबर, इनिशियली कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो क्या है, ड्यूरेशन इज 5 लेबर। अगेन 1 to 4 है तो 5 चाहिए। अगेन 2 to 7 के लिए कितने लेबर चाहिए, 6 चाहिए। तो 2 to 7 जो भी है, 2 to 7 है, हमने जो भी डायग्राम ड्रॉ किया 2 to 7, तो आफ्टर 3 आवर्स कितने आवर्स के लिए चाहिए, 6 आवर्स के लिए चाहिए 6 लेबर चाहिए। तो आफ्टर 3 आवर्स 6 आवर ड्यूरेशन के लिए 6 लेबर चाहिए। उसी तरह सब लिख दो और ये टोटल करो, तब देखोगे मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है 5 और मिनिमम कितना है 16 है। फ्रॉम द बार चार्ट ऑफ टेबल 2 इट विल बी, ड्यूरेशन नहीं, जो भी व्यक्ति चाहिए उसमें मैक्सिमम 5 और मिनिमम कितने व्यक्ति है, 16 व्यक्ति है। From the bar chart of tables, it will be show that the demand of the labor varies from 5 to 16 and the maximum demand of 16 laborers is for 2 days only। That means it 2 days जो है उसमें maximum labor चाहिए 1660। Okay, to smoothen the fluctuation, let us adjust the activities having floats। The activities are rewritten having float in descending order as follows। That means जो भी activities है उसमें फ्लोट जो भी हमें फाइंड आउट किया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले कौन सी एक्टिविटी आएगा, 4 का आएगा, फिर कौन सी एक्टिविटी के लिए आएगा, 3 की एक्टिविटी के लिए आएगा फ्लोट। देन एक्टिविटी नंबर 2 के लिए फ्लोट आएगा, ये सब लिख दो। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। देन नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या आएगा, फ्लोट 0 आएगा। द एक्टिविटी 6 to 7 4 to 6 हैविंग एक्टिविटी 6 to 7
एंड 4 to 6 हैविंग ए फ्लोट कितना है 4 days है एंड एक्टिविटी 2 to 7 एंड 1 to 2 having float 3 6 to 7 and 4 to 6 6 to 7 and 4 to 6 तो इसकी वजह से टोटल बढ़ नहीं रहा है तो हमें क्या करना है दूसरी एक्टिविटी लेना है 2 to 7 and 1 to 2 having float 3 days each and the float is so adjusted that the requirement of the resources may remain practically constant and the resource distribution is shown in figure तो हमें क्या है 1 to 2 और 2 to 7 जो एक्टिविटी है उसको 2 days शिफ्ट करना है 2 days शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे 2 days शिफ्ट करेंगे फर्स्ट हमने कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट किया है यहाँ पे जो 2 days है उसको 2 days शिफ्ट करना है यानी 3 से स्टार्ट करना है ये नंबर ड्यूरेशन नंबर 3 से और 2 to 7 में अगेन ये 2 days 4 to 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 से स्टार्ट करना है तो हमको ड्यूरेशन टोटल क्या मिलेगा 12 12 13 13 13 12 13 टोटल करेंगे तो ये मिलेगा और उसपे से क्या करना पड़ेगा बाय शिफ्टिंग द एक्टिविटी 1 to 2 by 2 days and 2 to 7 by 2 days the resource variation has drawn to 5 to comes draw to 5 to 13 that means आप फर्स्ट हिस्टोग्राम में देख रहे हो this one is called histogram original histogram and this one is called mobile original is this one is modified histogram is this one and this one is the ओरिजिनल हिस्टोग्राम तो इसमें फ्लक्चुएशन आप देख रहे हो और ये मॉडिफाइड कर रहे हैं हिस्टोग्राम रिसोर्सेस हम जो भी है वो स्मूथन कर रहे हैं तो हिस्टोग्राम ऐसा आया और इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है इसमें फ्लक्चुएशन कम है एंड जो हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्यूरेशन इन डेज एंड नंबर ऑफ द रिसोर्सेस एक्स एक्सेस पे क्या ले रहे हैं ड्यूरेशन इन डेज एंड वाई एक्सेस पे क्या ले रहे हैं number of the resources that is called resource smoothing